السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم يا الله۔ اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل الأمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أعلم وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، آمین ثم آمین۔ تو ہم صفات عارضہ میں سے کون سی صفت کر رہے ہیں؟ صفات عارضہ کر رہے ہیں اور را کی صفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو را کو ہم نے تفخیم کے ساتھ دیکھا، اب ہم انشاءاللہ تعالی ترقیق کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کہ ترقیق کے ساتھ باریک را کب پڑھی جاتی ہے، را کو باریک کب پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے وائٹ بورڈ پہ ہی آ جاتے ہیں تاکہ آسانی ہو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ تو ترقیق میں را جو ہے، ترقیق کیا ہوتا ہے؟ باریک پڑھنا، باریک پڑھنا را کو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیق کے وقت زبان کا تعلق قوی ہوگا، ترقیق کے وقت زبان کا تعلق قوی ہوگا اور پشت زبان کا تعلق ضعیف ہوگا۔ جب ہم نے مخفم را پڑھی تھی تو اس کا اس سے اپوزٹ تھا، یعنی اس سے مخالف تھا، کیا تھا؟ اس میں زبان کا تعلق ضعیف تھا، کمزور تھا، اور زبان کی پشت کا تعلق قوی تھا، مضبوط تھا، یعنی کہ اس میں زیادہ کیا ہے، کیونکہ قوی کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ موٹا کیا ہوا ہے نا، تو زبان کی پشت تو اس کا مخرج ہے، تو اس لیے زبان کی پشت سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ زبان کی پشت ہی اصل میں لگی ہوتی ہے نوک کے ساتھ، تو جب ہم وہ پشت پہ زور ڈالتے ہیں جہاں پھر نہیں ڈالتے، تو جہاں پہ تعلق کمزور ہے، را را تجھے تھا تعلق، ری اتنا نہیں ہے نا، باریک ہے، را تو قوی ہے، سوری، زبان کا تعلق جو ہے وہ قوی ہوگا اور زبان کی پشت کا تعلق جو ہے وہ ضعیف ہوگا اس میں، ترقیق کی راہ میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ را
زیر کو پڑھتے ہوئے تکرار نہ ہونے پائے. را جب زیر میں پڑھتے ہیں تو تکرار نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑی سی یعنی کہ لکھ لیں، پھر ایک ایک کر کے ہم ان کو بتاتے ہیں، آتے ہیں اس کی طرف. تو کیا ہے؟ ترقیق والی را جہاں پہ ترقیق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترقیق، ترقیق را لکھ دیتے ہیں. تو اس میں لسان ہم پڑھ چکے ہیں. اوہ، لسان یعنی زبان کا تعلق قوی ہوگا اس میں. قوی اور پشت کا تعلق سبحان اللہ، پر لکھتا بھی ایسے بچوں کی طرح. اب ویکینڈ کے بعد میری بھی پریکٹس بھولی ہوتی ہے اس کو لکھنے کی. تو پشت کا تعلق جو ہے یہ ضعیف ہوگا کیونکہ پشت کو اتنا زور نہیں جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ضعیف ادھر میں لکھ دیتی ہوں تاکہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو یاد رکھنا ہے. آپ نے بات مین پوائنٹ یہ ہے ترقی کی راہ میں را جب زیر کے ساتھ پڑھے، کوئی را بھی آئے زیر کے ساتھ، یہ را مشدد ہوگی. سوری، را مشدد زیر کے ساتھ جو ہوگی. ٹھیک ہے. را مشدد کس کے ساتھ؟ زیر کے ساتھ. کیا ہوگا؟ تکرار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو تکرار سے بچانا ہے. تکرار ہم پڑھ چکے ہیں. تقریر جو ہم نے صفات لازمہ متعددہ میں سے پڑھی تھی، غیر متعددہ سوری. تو یہ آپ اپنے نوٹس میں لکھیں گے تاکہ آپ کے ذہن نشین بات ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کیا نہیں ہوگا؟ ایک تو زبان کا تعلق کمزور ہوگا اور زبان کی پشت یعنی کہ سوری زبان کا تعلق مضبوط ہوگا اور زبان کی پشت کا تعلق یعنی کہ باقی جو زبان ہے اس کا تعلق قوی ہوگا اور پشت کا تعلق جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اور پشت کا میں بتا چکی ہوں کہ جو آگے سے جہاں سے ہم نے کیا تھا تکرار کہاں سے ہوتا ہے وہ حصہ، اور انحراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انحراف میں پشت زبان کی لگی ہوتی ہے مضبوطی سے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے آواز جو ہے درمیان سے باہر انحراف کرتی ہے. تو وہ ہم نے ادھر پڑھا تھا، ادھر جا کے دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اس کی. تو انشاءاللہ را کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اصول ہیں. را کے کتنے ہیں؟ نمبر 1 را زیر کے ساتھ. را نمبر 1 میں کر دیتی ہوں. نمبر 1 را زیر کے ساتھ ہمیشہ باریک. ٹھیک ہے. میں
एग्जाम्पल एक देती हूँ, रिज्क, या रिज्किन भी लिख सकते हैं, रिज्कुन, रिज्कुन हम लिखते हैं कुन, रिज्कुन, रिजालुन, बहुत सारी हैं जी, तो एकदम आना शुरू हो जाते हैं, एकदम आप जब यूं ही सोचते हैं आना शुरू हो जाते हैं ज़हन में ना, इंशाल्लाह। रिजालुन, फिर दो ही मिसालें हम लेते हैं, बाकी आप ढूंढें, ठीक है। नंबर 2, मैं आपको पूछती हूँ बाद में कि आपने होमवर्क किया था कि नहीं। रा मुशद्दद ज़ेर के साथ, रा मुशद्दद ज़ेर के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज़ाहिर है कि ज़ेर के लिए नीचे ही रहती है ना ज़ुबान, है ना? री, 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 क्योंकि अपने मखरज पे तो जाके लगेगी, लेकिन ये वो नहीं होगा उसका ताल्लुक जो हमने मोटे हर्फ पढ़ने के लिए किया है। तो मोटा हर्फ कैसे होता है? ज़ुबान के पीछे से भी उठाया जाता है। तो अर्रिजाल, रिजाल को ही फिर ले लें, अर्रिजाल, इसमें अब अर्री जे हमज़ातुल वस्ल है, जे हमज़ातुल वस्ल है, ठीक है। अर्रिजाली, अब अर्रिजालुन नहीं आएगा, ठीक है, अर्रिजालू आएगा, अर्रिजालू। और ये कोई शर्रिन, शर्रिन भी बहुत बिल बहरी दुर्रियुन, वो बहुत है इसमें, लेकिन हम 2 लिख लेंगे। शर्रिन बहुत आसान वाला, और पढ़ते भी हैं शर्रिन यरा, शर्रिन यरा, वो शर्रिन यरा है, यानी वो नहीं है शर्रिन, शर ये होगा शर्री, ठीक है। शर्री। नंबर 3, रा, रा के बाद हरूफ मुस्तालिया उसी कलीमे में ना हो। ये एक रा जो है, जब रा आती है तो रा के बाद हरूफ मुस्तालिया उस कलीमे में ना हो, तो फिर रा बारीक होगी। हमने पढ़ा था हरूफ मुस्तालिया उस कलीमे में आगे होगा तो रा मोटी होगी, तो ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। मुखफ़्फ़फ़ में हमने पढ़ा था कि रा जो थी वो उसके जब रा के बाद हरूफ मुस्तालिया आ जाएगा और रा से पहले ज़ेर होगी, तो रा जो है किसके ताबे हो जाएगी? रा हरूफ मुस्तालिया के मुताबिक पढ़ी जाएगी, मोटी पढ़ी जाएगी। तो सॉरी, जहाँ पे रा जो है रा बारीक कब पढ़ी जाएगी? रा के बाद जब हरूफ मुस्तालिया उस कलमे में उसी कलमे में ना हो, यानी कि अगले कलमे में हो, उसका ताल्लुक उसके साथ फिर ना हो, तो फिर रा बारीक पड़ी जाएगी। फिर रा का आगे वाले से कोई ताल्लुक नहीं होगा, रा का फिर पीछे से ही जो भी होगा, या उसके कोई हरूफ, हरूफ मुस्तालिया, अब बार-बार उसी को रिपीट करना पड़ेगा। ओह कम ऑन, ये लिखता क्यों नहीं है? ठीक है, हरूफ मुस्तालिया का दर किधर होगा? हरूफ मुस्तालिया किधर होगा? सिस्टर अगले कलमे में हो। हाँ जी, हरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में ना हो, ना हो, ठीक है, उसी तो फिर कलमे रा में में कोई ताल्लुक नहीं होगा ना, उसी कलमे में ना हो, ना हो। तो ये ज़रूरी है, ठीक है।
یہ ضروری ہے پتہ کرنا، کیونکہ اس سے آپ کو اس کا بھی یاد ہو جائے گا، جو پیچھے پڑھ چکے اس کا بھی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تھا کہ اسی کلمے میں ہو، یعنی کہ را کے بعد آ جائے، ادھر یہ نہیں تھا کہ اسی کلمے میں آ جائے یا نہ آئے، لیکن تھا کہ را کے بعد آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ را کے بعد اسی کلمے میں آئے گا نا، تو انشاءاللہ تعالی تو یہ پھر آپ اس کی کافی اس کی بھی مثالیں ہیں، اگر آپ لکھنا چاہیں تو فرعون، جی، فرعون، فرعون، قدیر، قدیر، ارجی، ارجی، نا جی جس طرح بھی لکھیں، جی اب میں جی قدیر نہیں نہیں، آپ وہ نہیں لیں گے، اچھا اس میں تھوڑا سا ہو جائے گا کہ غور و فکر کر کے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا، جیسے کچھ ایک مثال لیتے ہیں، کیونکہ را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو، تو اس کی اور تھوڑی سی وضاحت پہلے لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اس کی وضاحت میں یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ را باریک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، زیر اصلی ہو، زیر اسی کلمے میں ہو، زیر اصلی بھی ہو تو کیونکہ زیر نقلی بھی ہوتی ہے نا، نقلی کیسے، عارضی جس کو کہتے ہیں نا، عارضی زیر بھی ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے کہ کچھ حروف میں عارضی زیر آ جاتی ہے جب آگے ملانا ہو تو، ہے نا، تو یہ اس کی شرط کیا ہے، اصلی زیر ہو، ٹھیک ہے، زیر کیا ہو، اصلی اپنی ہو اس کی، ٹھیک ہے، لائی گئی نہ ہو، جب لائی گئی ہوگی تو پھر اس میں وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا بدل جائے گا، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھتے ہیں، لکھ لیا آپ نے ہوگا مجھے امید ہے کہ اس کی وضاحت کیا ہے کہ ایک تو زیر اسی کلمے میں ہو، اس کے اوپر ہم نے پڑھا کہ اس کلمے میں نہ ہو، اور دوسری وضاحت کیا ہے کہ زیر جو ہے وہ اصلی ہو، یعنی را ساکن سے پہلے زیر ہو، اور میں تھوڑا بہت گڑبڑ کر گئی، میرا خیال میرے ذہن میں اب کہاں میں نے جہاں پہ کوئی میرے خود کے لیے سینس نہیں اب بنا، کیونکہ میں نے را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو را سے پہلے، را جزم والی سے پہلے زیر، را کے اوپر زیر، سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں پہ تھوڑا سا میں نے گڑبڑ کر دی، کیونکہ میرے اب خود سے جب آگے نہیں سینس بنا تو مجھے پتہ چلا اگزامپل میں کہ میں نے غلط جہاں پہ ذہن سے، جہاں پہ را جزم والی ہوگی اور را سے پہلے زیر ہوگی تو ہم نے کیا پڑھا تھا، حروف مستعلیہ را زیر جزم والی کے بعد آئے، تو جہاں پہ کیا ہے حروف مستعلیہ جزم والی را کے بعد کدھر آئے گا، اسی کلمے میں نہ ہوگا، یعنی کہ آگے آئے گا جدھر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ لکھ لینا ہے کہ اسی کلمے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں شرکیکم، 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 تو کیا اس میں ایک میں تھوڑا سا پہلے میں اگزامپل لیتی ہوں پھر اس کے، شرکیکم، اب شیر جو ہے اس میں زیر ہے شی میں، اور را میں جزم ہے، اور کم آگے آ گیا، کا جو ہے حروف مستعلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
अब कहाँ होगा कोई और हरूफ मुस्तालिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमने देखना है कि ये जो लफ्ज है इसमें हरूफ मुस्तालिया पाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, रा के बाद, समझ आ गई? रा के बाद हरूफ मुस्तालिया पाया जा रहा है कि नहीं। आगे अगले हल्फ में हो या ना हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसका कर रहे हैं। अगर उसमें होगी हरूफ मुस्तालिया तो दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि मुखफ़्फ़म रा की तरफ चला जाएगा। लेकिन नहीं होगा तो ये क्या है, तरकीक की रा बन जाएगी। फिर रा के ऊपर तरकीक होगी, रा जो है फिर मुखफ़्फ़म नहीं पड़ेगा। जैसे जहाँ पे अगर मैं सोचती कि कुम कुम की बजाय कुम होता, फॉर एग्जाम्पल कुम, तो क्या था, वो मुखफ़्फ़म रा होनी थी, लेकिन ये कुम है, काफ दूसरा है, तो इसकी वजह से फिर हमारी शर्त पूरी हो गई कि ये इसमें नहीं आया, यानी कि कोई हरूफ मुस्तालिया नहीं आया। सिर्फ उसी लफ्ज को हमने देखना है, क्योंकि जाहिर है रा के बाद जो कुछ आ रहा होगा उसी लफ्ज में आ रहा होगा। शिरआतुन, शिरआतुन, शिरकिकुम शिरआतुन, इसमें आइन है क्योंकि हमारा हरूफ मुस्तालिया खुस्सा दागतिन क़िज़ में से कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जहाँ पे इसकी शर्त पूरी हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी रा अब क्या होगी, हम बरीकी पढ़ेंगे, हम शीन के ये ज़ेर के मुताबिक अब हम रा को पढ़ेंगे। ठीक है, शीन की ज़ेर के मुताबिक, इसी तरह ये भी शीन की ज़ेर के मुताबिक पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब बाकी एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं, और भी होंगे इंशाल्लाह ताला, ये नहीं है कि एक दो ही होंगे, और भी बहुत सारे होंगे। तो इस रा के बारीक होने की भी 3 शराइत हैं। ठीक है, इस रा के बारीक होने की 3 शराइत हैं। ये रा जो क्या है, ये जो आखिरी रा हम कर रहे हैं, जज़्म के साथ पहले ज़ेर और बाद में हरूफ मुस्तालिया उस कलिमे में ना हो। इस रा के कितने असूल हैं? 3। तो ये याद रखने हैं थोड़ा से, क्योंकि आप अभी तो आप लोगों को हो रहा होगा कि पता नहीं, यानी काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप थोड़ा सा इसके में आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला, या फिर मैं अभी इसको रहने देती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, लेकिन बाकी सब मैं कर चुकी, तो इसको कर दूं, फिर बता दूं, जी सिस्टर, हाँ जी बता दो बाजी। क्योंकि मैं ये है कि मैं बहुत हैवी हैवी मील नहीं आपको रोजों से पहले देना चाहती। मंदरजा झैल 7 हालतों में रा बारीक होगी, लिखे आप, अच्छा क्योंकि नीचे फिर आपको इसका ज्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें फिर क्या, क्यों? क्योंकि नीचे इसकी लिस्ट आएगी। ठीक है, इसकी जब लिस्ट आएगी तो आपको एग्जाम्पल के साथ दी जाएगी। कितनी हालतों में? 7 हालतों में। 7 हालतों में, 7 हालतों में, क्यों? उसकी फिर हालतें भी इंशाल्लाह हम देखते हैं कि क्या होगा। बारीक होगी 7 हालतों में। हालतों में रा बारीक होगी। ठीक है, 7 हालतें इसकी, ये भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि क्या बनता है। ठीक है, रा क्या होगी, बारीक होगी। ठीक है, इसकी इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके 3 ये हालतें जो इसकी हैं, पहले तो 3 लें इसकी, क्योंकि ये 7 जो हैं सारी मिला के हैं, लेकिन इसकी अपनी इस रा की 3 जो हालतें हैं ना, ये इसको बेशक अलहदा ही कर दें, इसकी 7 सारी इकट्ठी हो जाएंगी, तो लेकिन इसको हम अलहदा रखते हैं। पहले इसके 3 असूल करते हैं। 3 असूल क्या है?
सिस्टर रा साकिन से रा पहले साकिन जेर हो। जेर हो और उसके बाद हरूफ मुस्तालिया उस कलमे में ना हो तो इसके ना 3 हो। असूल लिखे। ठीक है, ठीक इसके हो 3 गया। असूल लिखे। ये मैं ठीक। शॉर्टकट में अब सबको बाद में बताती हूँ, लेकिन अच्छा, इसके 3 असूल। नंबर 1 इसका होगा कि जेर क्या है, ऊपर पढ़ा हमने, क्या हो जेर, जेर क्या हो, जे- पीछे ऊपर हम लिखा हुआ है मैंने कहीं, असली जेर हो। असली जेर बताया है, लिखा नहीं है, जेर असली हो। ठीक है, ये इसकी पहली शर्त है, क्योंकि अगर जेर जो है टेम्परेरी होगी, लगाई गई है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो ता जज्म वाली हो, यानी कि वो मुअन्नस की ता हो तो उसको आगे मिलाने के लिए जेर दी जाती है ना। जी तो इस तरह की कोई अगर को हो सिचुएशन तो वो नहीं है, लेकिन वैसे मैं बात बता रही हूँ कि जिस तरह उसको जेर दी गई थी, तो कोई ऐसे हरूफ होंगे जिनको जेर आरजी दी जाती है, तो वो अभी हमने नहीं किए। ठीक है, एक दो होंगे तो और बात है। जेर असली हो, ठीक है, ये इसकी शर्त नंबर 1। ये जो है, ठीक है, ये जेर है ना, शिर में जेर है, जहाँ पे शिरकुम, जी सॉरी शिर आतुन, तो ये शीन के नीचे असली जेर है। ठीक है, शीन की ली हुई जेर नहीं है कि किसी वजह से इसके ऊपर जेर आई हो, क्योंकि कोई कोई हरफ को आगे मिलाने के लिए ज्यादातर जेर इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी कि जेर आरजी लगा दी जाती है, क्योंकि 2 हरूफ जो क्या होते हैं साकिन आ जाते हैं, वो मैंने बता दिया था आपको। 2 हरूफ साकिन इकट्ठे आए तो जो पहला हर्फ होता है उसको जेर दी जाती है, जो उस वर्ड यानी कि क्या कहते हैं कलिमे में हो। नंबर 2 जेर उसी कलमे में हो, जेर किसी और कलमे में नहीं होगी, क्योंकि शेर शेर में जेर किधर है, जेर रा के साथ मिली हुई है, उसी कलमे में हो। ठीक है, जी ये इसकी शर्त नंबर 2 है। ठीक है, क्या है, जेर क्या होगी, जेर उसी कलमे में हो। जेर उसी कलमे में होगी तो फिर रा बारीक पड़ी जाएगी, जेर उसी कलमे में। ये इसकी शर्त है, किसकी, ये नंबर 3 रा जो है इसकी शर्त। ठीक है, इसकी ठीक है। शराइत ये हैं। ठीक है, हाँ जी। उसी उसी में लिखना था, कुछ और ले, उसी कलिमे में। एक तो असली होगी, दूसरी उसी कलिमे में होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, तीसरी शर्त, ठीक है, नंबर 3 रा के बाद हरूफ मस्तालिया उसी कलिमे में ना हो, वो ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग, इसकी शराइत को अलग अलग ये मैंने बता दिया ना, उसी कलिमे में ना हो। एक तो ये है असली हो और उसी कलिमे में ना हो, और जेर जो है फिर क्या है, रा के बाद हरूफ मुस्तालिया भी उसी कलिमे में ना हो। ना हो। ठीक है, ये वही मैंने जो ऊपर लिखाई है वही इसको अलहदा करके, अगर वो ऊपर ना लिखनी हो ऐसे तो इस तरह लिख सकते हैं। वहां पे मैंने एग्जाम्पल देना था और सब कुछ, तो इसलिए मैंने उधर को कर दिया, तो बेहतर है कि अलहदा अलहदा हो, और ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा बढ़कर इसकी समझ आ गई होगी कि नहीं। हम्म। अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप पूछें, सब पहला खामोश असूल है। तो बाजी होगा ना कि जेर समझ असली नहीं हो। आई। हाँ हैं? जी, पहला असूल होगा कि जेर असली हो, है ना, रा रा के नीचे। नहीं, किसी किसी कोई कलमा भी रा हो से जेर पहले असली हो। हर्फ पर, हाँ जी, र, पहले हरफ पर। रा रा के से पहले पहले हर्फ पर, हाँ जी, रा से अच्छा, पहले हर्फ पर हरूफे, तो ये हरफ मस्तालिया उसी कलमे में ना हो। रा से पहले हर्फ पर जेर असली जेर हो। जेर असली हो, हाँ जेर असली हो, और फिर क्या है, जेर उसी कलिमे में हो, रा के साथ ही हो, यानी कि उसी कलिमे का हिस्सा हो, ये ना हो के जैसे ये अब शिर और दोनों शिर क्या है,
उसी कलिमे में पाई जा रहे हैं। जैसे ये देखिए शिर उसी में, अर्रिजाल इसी में है, रिज्क ये मैं सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह पहचानेंगे, ठीक है। रिजाल की रा जो है इसी की है, तो रा के पहले वो होगा, जैसे अर्रिजाल है तो जहां पे कुछ और हो, जैसे ये शिरकुम ही में लेते हैं और शिरातुन में ही लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको समझ आती है। इंशाल्लाह इसकी मिसालें हम अभी देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए और इसी कलीमे में हो ना हो, सॉरी ना हो। अब मैंने ये मंदरजा जैल भी लिख दिया, लेकिन इसको अब फिर लिखना पड़ेगा, मिटा दूं तो, क्योंकि इसकी मेरा ख्याल में मिटाती हूँ इसकी, ताकि हमें इसकी मिसालें लिखने में आसानी हो। ठीक है इंशाल्लाह। असली मिसाल जो ले, इसकी मिसाल असली, ठीक है, जहां पे होगी असली मिसाल, ठीक है। असली में अकेली लिख देती हूँ, असली जेर, जी असली जेर लिख देती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है जी। ठीक है, असली जेर, ताकि आपको अब लिखना भी वो असली देखो कितना निकम्मा आया है, आप लोगों को पता चल गया होगा, जो अच्छा सुनेगा उसको पता चल जाएगा। असली जेर इसका लेंगे फिरआउन, असली जेर की मिसाल फिरआउन, तो ये फिर जो है फा के नीचे क्या है, असली है जेर, ठीक है। फिरआउन में जेर असली है फा के नीचे, ली नहीं हुई, ठीक है। मिसाल नंबर 1। अब आर्जी मिसाल जो होती है, अगर आर्जी मिसाल इसकी देखें तो आर्जी मिसाल मेरा ख्याल में बॉक्सेस में अगर करूं तो, आर्जी मिसाल जो है इसकी, क्योंकि आर्जी के से आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। जी आर्जी जेर वो अब मुखफ़्फ़म की उधर भी मैंने बताई थी, आर्जी जेर, तो इसमें इरजी, इर इरजी, अब आर्जी जेर कहाँ है, ये जीम में। हमजातुल बस जी में मैं पूछ रही हूँ आपको कहाँ है, जीम में या हम वो जो अलिफ है उसमें लिखा हुआ, वो अलिफ में है आपा जी। इधर है जो, तो ये हमजातुल जी वसल था, जी इरजी, ठीक है। जे इसकी नकली नकली नहीं आरजी जेर है, ठीक है। जे आरजी है, खुद लगाई गई, क्योंकि जहाँ पे दो हरूफ जो हैं, क्योंकि हमजातुल वसल भी खाली होता है ना, तो जी वो भी उसके जज्म वाला अगर हो या उसके ऊपर जो भी लगाया जाए तो इरजी, ठीक है। ये इसकी नकली में बार बार कर रही हूँ, आरजी है। कलमा एक ही कलिमा में होने के लिए देखें हम, एक ही कलमा में हो, ठीक है, एक ही कलमे में, क्योंकि थोड़ा सा वजाहत की जरूरत है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं तो सोच रही थी आज मैं और भी कुछ कराऊंगी, लेकिन ये है एक ही कलमे में हो। इसकी मिसालें एक ही मैं दूंगी, एक सिस्टर एक आरजी जेर वाला खाना बनाना है कि सिर्फ ये आपने बना लें आप, एक्सप्लेनेशन के लिए? बना लें आप तो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये सारे मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। उम, ये ऐसे ऐसे आप मैंने इसलिए डाले हैं कि मैं ज्यादा लिख सकूं, ठीक है। अच्छा इसमें आरजी और जो है असली वो ऊपर आपको आ गया ना, तो आपको पता चल जाएगा। जहां पे एक ही कलमे की मिसाल आप लें तो आपको पता चल जाएगा खाने इसी तरह ही बनाने हैं आपने, ठीक है।
जो कि आपके अलहदा अलहदा हों। जब दोनों अलहदा अलहदा होंगे तो आपको फिर ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। फ़अंज़िर, कोई बहन आ रही है, एक मिनट, सॉरी। फ़अंज़िर, ओहो कमान, जी अब आपको और भी मिल जाएंगी जहाँ पे, ठीक है। और ताकि आपको मिसालों के साथ अलहदा-अलहदा इनका, अब दूसरे कलिमे में होने की मिसाल देखें। वो एक ही कलिमे में है, दूसरे कलिमे में, ठीक है। दूसरे कलिमे में क्या होगा? क्या होगा दूसरे कलिमे में? आरसी देर दूसरे कलिमे में जहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी, आप पेशेंट रखें क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं इतनी माहिर नहीं हूँ इसमें लिखने में। इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कई बार लिखने भी नहीं देता है। रब्बिरजिऊनी, तो जहाँ पे इरजिऊनी जी का है, किधर है जेर? किधर है जेर? किधर है इधर? इसमें मैं जो मिसाल दी है, जेर सिस्टर दूसरे दूसरे कलिमे कलमे में, में आई ना, दूसरे दूसरे में कलिमे में है। रब्बी के बाद हाँ, इरजून। अब आपको समझ आई। फ़अंज़िर में जेर कहाँ है? एक ही कलमे में। एक ही एक ही कलमे में, में ठीक है। पहले, हाँ जी। तो अब एक कलमे की मिसाल जो है, एक और इसको मैं दे दूं। ये हमारा बहुत खास लफ्ज है, मीरो। साथ जे मीरिया जे हरूफे मुस्तालिया एक कलिमे में है, ठीक है। जी। हरफे मुस्तालिया, मिर्साद मुस्तालिया, वो सब कुछ फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जे क्या थी? जेर एक कलिमे में थी। ये क्या होगा? हरूफे मुस्तालिया। क्या आपको पता चल जाए? क्योंकि इन्हीं को डिवाइड करके, इन्हीं को अलहदा करके लिखा जाएगा। स्वाद के ऊपर सॉरी जबर होगी। अब बहनों को भी अंदर कर रही हूँ, तो वो बहनें आज बहुत तसल्ली से आ रही हैं। खास बात है कोई? सिस्टर ये जो मंडे, मेरा स्वाद है ना, इसमें ये स्वाद मोटा हो गया तो रा बारीक ही पड़ी जाएगी। ये हमने पीछे तखफीम में पढ़ा था ना रा को। कौन जी, बहन बताएगी किसको समझ आई थी? अब वो तो समझ आई थी, लेकिन मुझे इसमें ये बात नहीं समझ आई कि हम इसमें इसको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि जब हम रा बारीक पढ़ रहे हैं और उसमें रा बारीक का जो रूल है, इसमें हरूफ मुस्तालिया एक कलमे में नहीं होता। हम्म तो ये इसका मैं बता रही हूँ कि अगर आपको पता चल जाएगा इसका, तो फिर क्या होगा? फिर ये बारीक नहीं पड़ी दोनों जाएगी। दोनों अलहदा अलहदा आप कर सकेंगे अगर मैं दोनों की मिसालें दे दूं तो, ठीक है। कि नहीं, एक ही आपने लेनी थी सिर्फ इसी की? सिस्टर कंफ्यूजन हो रहा है इससे। हो रहा है, अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, मुझे ये लिख लेने दे और फिर मैं मिटा देती हूँ। जिसको समझ आ गई होगी वो फिर इसको, जिसको ना समझ आ गई होगी वो इसको अलहदा अलहदा दूसरे कलिमे की मिसाल दे के मैं, एक मिनट ये लिखने दो मुझे और फिर मैं ठीक। इसको समझाती हूँ, ठीक है। मुझे समझ आ गई कि आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है।
मैंने सोचा था कि आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी। दूसरे कलमे की मिसाल इसकी क्या है? अगर आप दो स्वाद स्वाद फस्बिर अगर हम लिखें, फस्बिर फस्बिर सब्रन, फस्बिर सब्रन। अब कहाँ गया हरूफे मुस्तालिया? हरूफे मुस्तालिया मुझे दे, ये सिस्टर किधर है? फसबिर में स्वाद, फसबिर में। फस्बिर की मिसाल हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें जहां पे उसी वक्त, अब जिन बहनों को ज्यादा पीछे वाला भी समझ नहीं आई उनके लिए बहुत आसान है, ये आसानी हो गई है उनके साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मिसाल भी और ये मिसाल भी इकट्ठी ले ली है, ठीक है। ये मुझे देना थोड़ा सा था कि मैं इकट्ठी दे दूं मोटी की भी। अब ये मोटी पड़ी जाएगी राह, ठीक है। जी क्योंकि साद कहाँ आया है? हमजा तो जे हरूफे मुस्तालिया किधर है? उसी कलीमे का हिस्सा है, ठीक है। जी अब ये मोटी पड़ी जाएगी, ये हमारी मुखफ्फम रा में आ गई, ठीक है। मुखफ्फम में अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ मुखफ्फम रा, ठीक है। अब एसी के ऑपोजिट ले लें कि दूसरे कलीमे में जब होगी तो आप बरीक पढ़ेंगे, क्योंकि अब उधर कन्फ्यूजन हो सकती थी। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि वो उधर भी हरूफे मुस्तालिया आ रहा था, इधर भी आ रहा है, तो इसका जी मतलब है रा जो है मोटी पढ़नी है। नहीं, फिर आप देखेंगे कि हरूफे मुस्तालिया में का हर्फ जो है कहाँ है, ठीक है। इसमें ये भी आरजी जेर ना हो, यानी कि जेर असली हो, उसी कलीमे में जो हो, क्या होगा उसी कलीमे में? जेर, जेर उसी कलीमे में हो। जहां मैंने लिखा नहीं था थोड़ा सा, शायद जेर उसी कलीमे में हो, ठीक है। जेर कहाँ हो? उसी कलमे में हो। तीसरी शर्त इसकी क्या है? हरूफे मुस्तालिया उसी कलमे का हिस्सा ना हो, ना हो। ठीक है। उसी कलमे का हिस्सा ना हो, क्योंकि फासबिर में जहां पे अलहदा है तो ये दो हरूफ है, दो अल्फाज हैं, ठीक है। सब्रन। अब दूसरी जो सब्रन है ये हमारा हरूफ मुस्तालिया है, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक। क्यों? ये क्योंकि दूसरे हम कलमे में आ गया ना, हाँ जी। फासबिर के हम ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि हमारा ये पहला बा जो है ये इसको कंट्रोल करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। हरूफ मुस्तालिया नहीं करेगा, क्योंकि इसका दूसरे घर में चला गया है, ठीक है। जी अच्छा, अब किसी बहन को समझ नहीं आई तो वो मुझे बताए। शाजिया बहन प्लीज, आप ये ना सोचिएगा कि मैं क्या कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस ये है कि आप अगर समझ नहीं आई, कंफ्यूजन बढ़ गई है तो वो मुझे बताएं। नहीं सिस्टर, मैं ये हम्म, असल में कह रही थी कि जब हम रा बारीक पढ़ रहे हैं, जैसे हमने मोटी ये का जो पढ़ है। लिया कि रा इन हालतों में बारीक पढ़ी जाएगी, असली हम्म, जेर उसी कलमे में हो। एक तो ये है, फिर हरूफ मुस्तालिया उसमें ना हो, उस कलमे में ना हो, नेक्स्ट बेशक आए या उससे पहले बेशक आए, तो हम्म। वो तब भी हमारी बारीक पढ़ी जाएगी। अब हमने मिरसाद का जो एग्जाम्पल पढ़ी, उसमें ये हरूफ मुस्तालिया आ गई, ये मुफहम पढ़ी जाएगी, तो रा, इसका ये इसका बारीक फिर नहीं पढ़ी इसका जाएगी। टूट गया ना, इसका ताल्लुक इसका टूट गया। यानी कि शरायत में से कोई शर्त भी टूट जाए तो रा मोटी पड़ी जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया, वो मैंने लिख लिया है कि ये हमने इसको एक नोट सा लिख लिया है कि अगर एक ऐसे हो। नोट के लिए लिख ले, क्योंकि ये नोट ही मैं लिख देती हूँ ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये है कि अगर इन शरायत में से, कौन सी शरायत है? तीन। एक तो ये कि जेर असली हो। रा जेर असली हो, उसी हाँ कलमे जी। में हो, हो। और उस कलमे में हरूफ मुस्तालिया ना हो। मुस्तालिया ना हो, तीन। उससे अगले कलमे में हो। हाँ जी। अब जहां पे शर्त टूट गई,
جی یہاں پہ ٹوٹ گئی. جی ٹوٹ گئی تو پھر ہمارا مخفم پڑا گیا. تو یہ ساتھ میں لکھ لے کہ اگر کوئی شرط بھی ٹوٹ جائے گی تو را موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. سسٹر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں دوسرے کلمے میں فس بیر اور صبرن، اس میں بھی سواد اپنا موٹا کریں پلیز. آپ پڑھ چکے ہیں. فس بیر فصبر صبرن. ہاں صبرن. جی، کیونکہ ادھر بھی تو ران پڑی جا رہی ہے، اب را موٹی پڑی جا رہی ہے، تو آپ ایسے نہیں پڑھیں گے پھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہاں جی اب بولے. یہی کہ فصبر، اس میں وہی والی بات آ گئی نا کہ را یہاں پہ موٹی پڑی جائے گی. را جہاں پہ کہاں پہ؟ فصبر میں ہاں جی. پیر میں بریک ہوگی نا. را بر حروف. یہی تو ہم کر رہے ہیں نا. ہاں یہی جی تو جی یہی تو ہم فرق کر رہے ہیں نا. جی جی. اور فرق بھی سب یہی. اب سب رن. میرے پاس اب میرے پاس قرآن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کوئی اور مثال دیتی ہے اس کی. بلکہ میرے یہ پاس ہے باجی قرآن. اوکے. تو ہاں جی یہ فصبر صبرن جمیلا آتا ہے آگے. ٹھیک ہے. یہ آیت جو پوری ہوتی ہے ربیر جیونی میں جو آپ حروف مستعلیہ کی بات کر رہے ہیں ہے نا. حروف جی مستعلیہ میں آپ کو کنفیوژن ہے جی نا. تو حروف مستعلیہ ہم نے پڑھا تھا مخفم را میں کہ جو حروف مستعلیہ ہے وہ بعد میں آئے گا، اچھا پہلے پہلے نہیں. بے شک آ جائے. پہلے بے شک آ میں- جائے ہمیں اس کے اوکے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ کیونکہ کنفیوژن تھا. اگر حروف مستعلیہ ہمارا جہاں پہ ہوتا تو پھر تو ہم کچھ دیکھتے، کیونکہ وہ حروف مستعلیہ تو آلریڈی موٹا تھا. جی ٹھیک ہے. فور ایگزامپل جہاں پہ میں دیکھوں کہ میرا دود آ رہا ہے، زو آ رہی ہے، جا پھر میری تو آ رہی ہے، یا غین آ رہا ہے، قاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں دیکھوں کہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں، کیونکہ حروف مستعلیہ موٹا ہی ہوگا نا ادھر. جی جی وہ تو ٹھیک ہو گیا. آٹومیٹکلی موٹا ہوگا، اس کو تو ہمیں موٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ وہ آلریڈی اس کو فرق کوئی نہیں پڑے گا. اس لیے ہم وہ لے رہے ہیں ایگزامپل جن سے آپ کو فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. جی جن ٹھیک ہو سے گیا. حروف مستعلیہ کے علاوہ جو حروف ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ادھر کوئی بھی آ جائے، ہمیں کوئی نہیں، ہماری بلا سے کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. جو جی اس سے ٹھیک پہلے ہو گیا. پہلے ہوگا، لیکن جس کے نیچے زیر ہوگی اس سے ہمیں فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری را جو ہے اس سے ملے گی جا کے، وہ اسی کی تابعہ ہے نا. پھر جزم والا حرف اس کے تابعہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے حرف ہوتا ہے. تو اس لیے پھر زیر اس کی را زیر کو را سے آگے ملایا جاتا ہے. تو اس لیے را پھر اکیلی نہیں پڑی جاتی نا، جزم والا حرف خالی ہوتا ہے اصل میں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی عربی بہن نے بتایا، میرے ساتھ کام کرتی ہے، تو الحمدللہ اس نے بتایا کہ یہ جزم جو ہوتی ہے نا، یہ جی اصل میں خا کا سر ہوتا ہے، یعنی کہ خالی. جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، تو یہ خالی حرف جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا خالی اچھا. حرف کو یہ خا کا سر ہوتا ہے اوپر، جو جزم ہوتی ہے. تو یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا. ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ساکن ہے، یعنی کہ یہ کمزور لیٹر ہے. یہ پتا تھا بیماری والا حرف ہوتا ہے، یعنی کہ حروف نہیں، وہ حروف علت الف واو اور یا ہوتا ہے. لیکن یہ جو لیٹر ہوتا ہے جزم والا، یہ یعنی کہ پہلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر جزم جو ہے اصل کیا ہے، اس کی وجہ پیچھے ہونے کی. کیونکہ عربی میں بھی خالی ہمارا خالی ہے ادھر بھی. ٹھیک ہے. اس کا بھی خالی جو ہے، جو ہم خالی کہتے ہیں، وہی خالی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ٹھیک. تعالی. تو یہ جو خالی راہ ہے، یعنی جزم والی راہ ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہو، اگر وہ حروف مستعلیہ ہو گیا تو ہمیں اس سے نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ ہم نے زیر کو دیکھنا ہے.
جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ سب بہنوں کو آ گئی ہے تو مجھے بتا دیں، میں آگے بڑھوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ نمبر 3 جو ہمارا تھا نا، اس کے آگے والی مثالیں ہم نے دیکھنی ہے. جگہ بھی نہیں رہی. اب اس کو مٹا دیں پھر جی کہ اس کو مٹائیں گے تو پھر ہی آئے گی. ٹھیک ہے، ورنہ ہم لکھ نہیں سکیں گے. اس کو مٹانا پڑے گا. اب سب جس بہن کو نہ پتا چلے وہ نا پیچھے سے پھر ریکارڈنگ دیکھ لے، جا اپنی ویری کوئک شاٹ لے لے، اسکرین شاٹ، تاکہ میں اس کو مٹا دوں. ٹھیک ہے. یاسمین بہن اسپیشلی، کیونکہ یاسمین بہن کے پاس پھر انٹرنیٹ نہیں ہوتا نا. میم پھر ہم یہ آیتوں میں پریکٹس کریں گے تو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے زیادہ اچھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم سب پریکٹس کے تھرو نہ گزرے تو ادھر جا کے ہمیں بھول جائے کہ ہم نے کیا کرنا تھا، ہے نا. تو جب آپ ساتھ میں انشاءاللہ پریکٹس تو ہم کریں گے تو، لیکن اس وقت اگر آپ لوگوں کو، میں نے یاسمین بہن کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ اپنا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے، وہ پھر بعد میں لکھ سکیں گے ان کو اگر مثال نہیں لکھنی ہو. کیونکہ جب عارضی اور اصلی جب جو بھی ہیں وہ سامنے ساتھ ساتھ ہوں تو زیادہ سمجھ آتی ہے نا. کمپیئر جہاں پہ کمپیریزن جب ہو تو کمپیریزن کب ہوتا ہے؟ جب وہ سامنے دونوں چیزیں ہوں تو پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں. کیونکہ آپ بازار میں بھی چیز لینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے نقلی بھی موجود ہو اور اصلی بھی موجود ہو تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے نا. تو اب آپ کہتے ہیں نا نمبر 2 اور نمبر 1 نمبر 2 ہے نا. تو اس میں پھر پتا چلتا ہے ہمیں جب اس کا، تو یہ اب اس کی نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. یہ اے بی سی بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہوں تو، تین اس کے اصول علیحدہ بے شک اس راہ کو لکھ کے تو پھر آگے نمبر 4 لکھ دیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 اس کی ہوگی جو ہمارے اس کے بعد آگی. ٹھیک ہے. تو یہ راہ جو ہے نمبر 4 والی، اب دیکھیں کہ راہ جو ہے اس میں راہ ادھر جا کے ہے، راہ جزم والی ہے، اس سے پہلے جزم والا حرف ہے، وہی لے لیں ادھر جب ہم نے کیا تھا. اس سے پہلا حرف جو ہے یعنی جزم والی راہ سے پہلا حرف جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زیر والا. ٹھیک ہے. ادھر زیر ہوگی. اب راہ باریک پڑی جائے گی. کیوں؟ ابھی بھی یہ جزم والی راہ اسی زیر والے حرف کے تابع ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ بیچ والا بھی تو جزم والا ہے نا. جی سمجھ آ گئی نا. جی جی بیچ والا بھی جزم والا ہے، اس لیے ان دونوں کو پڑھنے کے لیے کچھ اور چاہیے تو وہ زیر والا حرف ہوگا. ٹھیک ہے. تو زیر والا حرف جو ہوگا یہ حالت وقف میں ہوگا. حالت کہاں ہوگا؟ وقف میں پایا ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو پھر ہمیں یہ صورت اس کی ملے گی. کیونکہ یہ وقفن بھی ایک، کچھ آپ وقف کی بھی شرائط پڑھ رہے ہیں کہ وقفن کیا ہوتا ہے. وقف کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وقف میں یہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ہجرن ہے نا، ہجر ہم سٹاپ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم لگا دیتے ہیں. جزم لگا دیتے ہیں. اب جزم ہج تو پہلے ہی جزم تھی جیم کے اوپر، اب ہم نے را کے اوپر بھی جزم لگا دی، ہماری شرطیں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کو سحرن میں لیا آپ، ہے نا، سحر ایسے ہی ہے نا. تو یعنی جزم والی راہ اور اس سے پہلے ساکن، پھر اس سے پہلے زیر. یہ بہت ایزی ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. کیونکہ جب آپ رکیں گے تو پھر ہجرن محجورہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہی جو ہے جہاں پہ ہجر سٹاپ کر کیا، اور کوئی مثال
सिहर, सिहर, ठीक है। सिहरिन, अगर सिहरुन होगा तो सिहरुन के पहले क्या थी, दो पेश को हटा के क्या कर दिया, जज़म लगा दी। स्टॉप करने के लिए हम वक्फ कर रहे हैं, डे में वक्फ की भी अलामत लिख दूं, ठीक है, वक्फन, ये वक्फन होगा। अब नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। अगर सभी को समझ आ गई तो नंबर 5 जल्दी से हम करें। ये देखे, रा का मैंने पहले इसी वक्त बताया, उसी वक्त बताया था जब मैंने कहा था कि रा के जब मखारिज कर रहे थे, मखारिजुल हुरूफ के रा के बहुत सारे हैं कवायद, ठीक है। ये रा के असूल आप पढ़ रहे हैं ना, कि कभी हमने सोचा था कि रा भी इतनी बड़ी हो सकती है, नहीं है ना। जी। अब नंबर 5 रा जज़म वाली, रा जज़म वाली इधर जाके लिखेंगे, रा जज़म वाली, इससे पहले हरफ पार क्या हो, जज़म, इससे पहले हरफ पार, जो इससे पहला हर्फ जो होगा वो यानी रा जज़म वाली, इससे पहले ज़ेर होगी, इससे पहले क्या होगी, ज़ीरो की सॉरी, जहां पे या जज़म वाली, या जज़म वाली होगी, ठीक है, या ज़ीरो जज़म वाली, इससे पहले ज़ेर, क्योंकि जज़म वाली या क्या लेती है अपने पहले, हमेशा जेर। मद जज़म जो होती है, मद वाली या। तो अब इसकी हम मिसाल देखें। मेरा ख्याल मैंने एक्स्ट्रा जज़म डाल दी हुई है, एक्स्ट्रा जज़म वाला कर दिया है, गड़बड़ है जहाँ पे ना। जे जो होगी ना, जे मिटा दें बीच में से, 1 मिनट, एक्स्ट्रा मैंने कर दी है जहाँ पे, ठीक है। अब ठीक आ गया, ऐसा होगा। तो 2 जज़म वाले आ गए ना, लेकिन शर्त क्या लग गई, ये, ठीक है। साथ में ऐसा ही था, लेकिन ये आम हर्फ है, ठीक है, कोई भी और हो सकता है या जज़म वाली के अलावा, क्योंकि जब या जज़म वाली आएगी तो इसका फिर क्या होगा, या सर जज़म वाली इसको हम रा साकिन से पहले याए मदिया हो, या मदिया आप ये कह सकते हैं, जज़म वाली या वही कंडीशन बन गई ना। वो ही कंडीशन बन गई, तो इससे हाँ जी। ठीक। या यसीर ख- आप बहुत खबीर, सारे जहन में आ जाएंगे, ठीक है। खबीर भी होगा ना बाजी। हाँ जी, अब वो मैंने कहा ना कि बहुत सारे आप जहन में आ जाएंगे। जी। यसीरुन, है ना, हाँ जी। यसीर, बसीरुन, बसीर, खबीरुन, खबीर, यानी लेते जाएं, अब तो ये बहुत सारे हैं कुरान में, हाँ ठीक जी। है। जैसे अब नहीं, अब हम कसीरन। 2 ही लिखेंगे, अच्छा। ठीक है। बसीर, ये जा जज़म वाली इधर है, और मेरा लिखाई में इतनी गड़बड़ है कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा, यानी कि जज़म वाली रा हो, इससे पहले या जज़म वाली हो, तो फिर इससे पहले हर्फ की हरकत का कोई इतबार ना होगा फिर, है ना। इससे पहले वाली हरकत का कोई इतबार नहीं होता फिर ना। यानी कि जज़म वाली रा हो, रा जज़म वाली हो, और उससे पहले या जज़म वाली हो, इससे पहले हरकत का कोई इतबार नहीं। अब हम उसमें डीप डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी लीन क्या है, लीन क्या है, या अगर मैं यही कहूँ कि या जज़म वाली हो, तो फिर इतबार नहीं होता ना, जहां पे हरकत का ये भी आ सकती थी फिर, है ना। तो वो क्या बन जाना था, क्या बन जाती थी, क्या वो हमने उधर पढ़ी थी, मोटी बन जानी थी रा, ठीक है। तो रा क्या बन गई, अगर जबर जहां पे आ गई या से पहले तो लीन लेटर बन गया, तो इसलिए हम लिखते हैं कि कोई इतबार ना हो उसका, ठीक है।
کہ کچھ اور بھی آ سکے گا. تو اس لیے جہاں پہ آپ لکھیں گے اس کی وضاحت میں کہ یا جزم والی ہو، یعنی را جزم والی، اس سے پہلے یا جزم والی، اور اس سے پہلی حرکت کا کوئی اعتبار نہ ہو. اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ادھر دیکھیں اور کہیں دیکھیں گے وہ یہ تو بدل گیا ہے، اب کیا ہوگا. تو ہم کیا کریں گے، اگر زیر ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ہم کس میں ڈالیں گے، ہماری مرکک را میں انشاءاللہ تعالی. یہ ایک اور ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہے نا را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن ہو یا پھر اس سے پہلے حرف کی حرکت کا اعتبار نہیں. یہ جو ہے یہ آپ ادھر جا کے مخفم میں بھی، مخفم میں رہنے دے، اس میں لکھا ہوگا تو بہتر ہے، تاکہ آپ کو جب ادھر سے پڑھ کے ادھر آئیں گے تو آپ کو زیادہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سسٹر یہ نوٹ ہی لکھ دیتے ہیں نا اس کو، نوٹ نوٹ. اپنے ساتھ لکھ لیں، کیونکہ پھر آپ کو وہ جو لین مدلین ہے، آپ نے کیا نا لین کی صفت، جی جی تو جی ان دونوں یا اور واو جزم والی سے پہلے کیا تھی، زبر تھی نا. زبر. جی جی تو جی ہاں سسٹر اس کو ہم یہی لکھ دینا کہ اگر را نہیں، ساکن سے پہلے یا کیونکہ ساکن انہوں نے مگر جو زیر نہ ہو. جو تجوید والے ہیں انہوں نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اچھا. اس میں انہوں نے لین کا نہیں ڈالا ہوا. تو اس لیے میں اپنی طرف سے جو سوچتی ہوں کہ یا سے پہلے جب زبر بھی آتی ہے تو وہ لین بنتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی تو اس لیے میں صرف آپ کو وضاحت کے لیے اپنی میری جو سوچ ہے اس سے بتا رہی ہوں، لیکن جو تجوید والے ہیں وہ انہوں نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے وضاحت میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب کچھ ہوگا اس میں اور بھی جو کہ میری عقل سے ہو سکتا ہے قاصر ہو، اور ماشاءاللہ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جو لینے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ زیادہ سمجھ سے لیتے ہیں، تو آپ لوگ اور بھی سمجھ سے لیں. تو یہ ہے کہ میری بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اور سورس مل جائے تو میری بات کو دے مارنا دیوار پہ انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ہے کہ آپ نوٹ میں یہ لکھیں گے انشاءاللہ کیا، کہ جزم والی یا سے پہلے حرکت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ہوگا، نہیں ہے یا نہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی اس کی را 5 ہو گئی. تو جی شٹی را جو ہے اس کی جو یعنی کہ زیر والی را کی، یہ امالہ کی را ہے. ممالہ اس کو کہتے ہیں. امالہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ممالہ را جس پر امالہ کیا جاتا ہے، ممالہ را جس پر امالہ کیا جاتا ہے. اب یہ میں بہت بار بتا چکی ہوں کہ ایک ہی حرف ہے قرآن میں، ایک ہی لفظ ہے قرآن میں. یاد کریں کون سا ہے. ایک ہی لفظ ہے قرآن میں. جب میں زیر بتاتی ہوتی ہوں، میں اور ہنٹ دیتی ہوں، جب میں زیر بتاتی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اس کو مجہول نہیں پڑھنا. تو کیا کرنا ہے، اس پر امالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ را امالہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس لفظ پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ امالہ سے وہ را پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ یعنی وہ را جس پر امالہ ہو. امالہ آپ نے پہلی بار لگتا ہے سنا ہے لفظ، جی ایسا ہی ہے. ہاں جی امالہ کی راہ جو ہے، اب میں یہ ایڈوانس کی چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ میں نے شروع تو بیسک سے کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اب میں ڈیپ ڈاؤن اتنی ڈیپ آپ کو لے گئی کہ اب مجھے پھر یہی ہے کہ آپ کو دے دیا جائے جو مل سکتا ہے آپ کو، کیونکہ میری زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اور انسان لے لے تو اچھی بات ہے نا. تو
जे अमाला जो होता है, मुझे वो वर्ड दे दें। सिस्टर आप अक्सर बताती हैं, मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा। सूरह नख्ल में से है वो जिसके वो नीचे प्रॉपर जेर डली हुई है। मैं अब सोच रही हूँ, जेर नहीं आ रहा। जिसमें आप कहते हैं कि सिर्फ इसमें मरजिहा मजरिहा मजरीहा मजरीहा कैसे पढ़ेंगे? कैसे मज पढ़ेंगे? कैसे? मजरेहा 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 पढ़ेंगे उसको। जी जी मजरेहा। हाँ जी, हाँ जी, मजरेहा। बताया होगा। हाँ जी, ठीक कहीं है। हाँ जी, लिखा भी आपने हुआ है। आज बताया है। आपको ये पता चल गया कि इसके ऊपर अमाला होता है, इस राह पर। ठीक है, जी अच्छा, ठीक है, इस राह पर अमाला होता है। अब घूम घुमा के वही आ जाते हैं। पता होता है थोड़ा बहुत, लेकिन डीप नहीं पता होता। ठीक है, मजरेहा। और ये मजरेहा देखे मजरेहा। एक ही लफ्ज है, तो अगर आपको याद ना होगा तो क्या होगा, फिर आप गलत पढ़ जाएंगे ना। जी तो इसको याद करना है। ये एक ही तो लफ्ज है जी। ना, एक ही हाँ लफ्ज है, जी, तो आपने इसको बताया था। हाँ जी, कहीं लिखा भी होगा मजरेहा। मुझे लगता है। तो हाँ, अमाला, मजरेहा। अब अमाला का क्योंकि जो मैंने बताया है, तो आप इसको तारीफ अमाला की लिखे। हाँ जी, अमाला की तारीफ इसके नीचे ही लिख लें। ठीक है, अमाला का लघवी मैनी क्या होता है? लघवी मैनी मैंने बताए हुए हैं ना, जहां भी तारीफ मैंने किसी चीज की बताई है, मैंने लघवी मैनी भी बताए हैं। लुगत में उसको क्या कहते हैं? ठीक है, लघवी मैनी उसका क्या होता है? लुगत के, अरबी लुगत के एतबार से ना, तो हम लिखते हैं लघवी मैनी, मायल करना, झुकाना। ठीक है, लघवी मानी क्या है? मायल करना या झुकाना। इस्तिलाही मानी ले, इस्तिलाह में यानी रा में अलिफ को या की तरफ, रा में अलिफ को या की तरफ। अब मैं लिखूं तो जगह नहीं है जहां पे ना। लघवी मानी क्या है अमाला के? माइल करना, झुकाना। मायल करना, झुकाना। क्योंकि अगर ना भी कुछ और हमारा किया जाए तो ये भी हो जाए ना, आज हमारा तो बहुत समझ आ जाएगी, रा खत्म हो जाएगी कम से कम। हाँ जी, मायल करना या झुकाना, यानी कि मायल होना नहीं मैं कह रही, याद रखें। माइल करना। हाँ जी करने वाला, जो पढ़ने वाला है वो कर रहा होता है। ठीक है, जी। ये नहीं आपने लिखना मायल होना या झुकना। ठीक है, अच्छा, फाइल कोई और है। ठीक है, जे फेल कर रहा है वो। ठीक है, जो तो पढ़ रहा है इसलिए वो कर रहा है ना। जो जो पढ़ रहा है वो कर रहा है पढ़ने में। ठीक है, खुद नहीं, अच्छा, जहां पे लिखा हुआ हुआ नहीं हुआ। इसको याद रखें, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग जो हैं इसको माजरी है, जहां पे मैं कहती होती हूँ कि जहां पे मजहूल नहीं पढ़े जेर को, वहां पे मजहूल पढ़ते जाते हैं। जहां पे उधर जाते हैं ना माजरी यहाँ पे, उधर क्या हाँ करते जी हैं? उधर एन मारूफ पढ़ते हैं उसको। जिधर पढ़ना चाहिए उधर मारूफ पढ़ते हैं, उल्टा जाते हैं, है जी। ना। मजरेहा। तो अब इसमें क्या है? इस्तिलाही मैनी ले, जे है लघवी मैनी इसका। ठीक है, इस्तिलाही मैनी मुझे आप दें अब। इस्तिलाही मैनी मैंने क्या बताया? सिस्टर रा में अलीफ का अलिफ अजाफा को कर या देना, की तरफ नहीं, रा या में, की तरफ मोड़ देना। रा में अलिफ को या की तरफ। अब अलिफ को या की तरफ ना, या जो आएगी उसमें तो फेरी है ना। जी तो आपको नजर आ रही है कहीं या? देखती हूँ, ये भी आपकी समझ का अब टेस्ट है कि आपको कितनी समझ आ चुकी है तजवीद की। रा कहाँ, या कहाँ है, वो मुझे बताएं। सिस्टर हम ये जब पढ़ते हैं ना मजरेहा, तो ये इसमें हम या ऐड कर रहे हैं।
रोजे वैसे हम पढ़ते हैं ना ये रोजे री, रा के नीचे तो जेर है हम ना, इसी रे वजह कह से। रहे हाँ हैं, जी, रे कह रहे मजरे, हैं इसको। ये मजरे। हाँ नशीन बहन आप बताएं। नशीन बहन जी कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है इसका? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। किसका? मजरे ये हा जो बता रही हैं? हाँ जी, जी जी, कुरान में एक ही वर्ड ऐसा है ना, मजरे हा, जो पढ़ाया जाता है बच्चे। सिस्टर मैंने नहीं अभी 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 आपने अभी नहीं, अभी ज्वाइन किया, मुझे पता है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि शायद मजरे, आपको पहले इल्म में से कोई पता हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मुझे नहीं ये नहीं, आप मुझे ये बताएं कि जहाँ मजरे हा में या कहाँ है, वो मैं पूछ रही हूँ आपसे, रे अगर में है, आपको नजर आ रही हो तो। रे में ही तो होगा बाकी। या में पहले मज, सुन लें, फिर सुन लें पहले। हाँ, हाँ जी, जबर जी जी, आपने जो लिखा हुआ है ना मजरे हा, लास्ट में है ना, रा में, ममाला रा में ममाला यानी रा में ममाला, हो, रा में ममाला अलिफ को, कहता है। अच्छा गौर से सुने, रा जी में जी अलिफ को या की तरफ और जबर को जेर की तरफ माइल करना, इसका इस्तिलाही मानी क्या है? इस्तिलाही मानी जे मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। इस्तिलाही अब मैंने बहुत क्या कहते हैं, खिचड़ी पका रही हूँ जहां पे जगह नहीं रही, तो इस्तिलाही मानी जे मैंने गलत लिख दिया। इस्तिलाही मानी इसका होगा, यानी कि इस्तिलाही कुरा में ये इस्तिलाही मानी हो गया आपका मायनी, रा में अलिफ को या की तरफ और जबर को जेर की तरफ मोड़ देना, ठीक है। अब जी मैं फिर बताती हूँ। अभी आप लिख लें इसको, वो इसलिए कि आज आपने इस हर्फ को इसके आज के बाद जो है गलत नहीं पढ़ना, और जब भी आप इस लफ्ज पर पहुंचेंगे रमजान में कुरान पढ़ते हुए, तो आपको ये सारी हिस्ट्री इसकी आज की बातें याद आ जानी चाहिए, ठीक है। जी, और जब भी फिर पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें गलती आम तौर पर जो दूसरों में गलती करते हैं ना, कि जेर को मजहूल पढ़ते रहते हैं, लेकिन इधर आके क्या करते हैं, वो इधर आके बिल्कुल जो कहते हैं सारा साल सारी कुरान में कि ना करें, वो करते हैं, ठीक है। ये आम तौर पे होता है फिर, जी, ठीक है। मैं उधर कर दिया अपनी स्क्रीन को कोशिश करती हूँ कि पूरा इस्तेमाल करूं, माइल करना नहीं अब लिखने देगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मजरे हा को तोड़े हम, कि इसकी पूरी शर्तें पूरी लिख लें एक। हम्म, मजरे हा को तोड़ते हैं, ठीक है, जी जी ठीक, मैम, पहले मजरे हा को कर लें पूरा। पूरा, ठीक है। क्योंकि एक अभी शर्त इसकी रहती है, तो इसलिए मैंने कहा था, लेकिन ठीक है इंशाल्लाह इसको समझ लें पहले। अगर एक लफ्ज भी समझ आ गया कुरान का तो अल्हम्दुलिल्लाह। मीम जीम मज, ठीक है। मजरी आप ऐसे पढ़ते हैं, जी जी, है हाँ ना। जी, वो क्या जी, होता है जो खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश होता है, क्या होता है वो? ये क्या है? पढ़िए, इनको मुझे बताएंगे ये क्या है, नशीन बहन। हाँ जी, जी जी सिस्टर, ये खड़ी हरकत है ना? खड़ी हरकत है, तो इनमें क्या होता है, अंदर दो, क्या छुपा है? दोहर का, अंदर क्या छुपा है? दो नहीं हरकत नहीं, है, इसमें ठीक है। मदा हाँ के मदाद हाँ छुपा जी, है इसके ना, ये इसमें मदाद की मदात, तरह। आप मदात हाँ जी, मुझे दें। जी अलिफ मदिया या मदिया वाऊ।
हाँ जी, लेकिन मुझे दें, वो मैं लिखूं कैसे जहाँ पे? جی الف سے پہلے زبر ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. جی یا سکون کے بعد یا سکون سے پہلے زیر ہوگا. ٹھیک ہے. جی کسرہ. ہوں اور واؤ سکون سے پہلے دمہ. دمہ. جی تو فتح اب ہو گیا، مجھے الف سے کوئی این سائن کے نہیں ساتھ ہوتا. ملائیں. جی 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 مجھے بتائیں اب کیا میں کروں. یہ ایک سمجھنے کا منظور. نقطہ ہے اور بہت بیسک نقطہ ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں نہ آئی کوئی تو اس کو سمجھ لیں. یہ بیسک ہے، بہت بیسک ہے. جب ہم شروع کرتے جی ہیں نا پڑھانا تو اس وقت بتاتے ہوتے ہیں ان کو، جب وہ کھڑی زبر پہ آتے ہیں بچوں کو، تو اس ہاں لیے یہ بولا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مدہ کے زیر مقابل ہے، مد مقابل، اس طرح کچھ ورڈ ہے مد قاعدوں مقابل میں ہے. نا. اصل میں عربی میں بتاؤں آپ کے اس کی ٹرم کیا ہے. جی جی یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے یہ چھوٹا الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں الف صغیرہ. جی ٹھیک ہے. حمزہ فتح الف صغیرہ آ. ٹھیک ہے. حمزہ کسرہ الف صغیرہ کی ای. حمزہ کسرہ سوری حمزہ دمہ الف صغیرہ او. تو آوازیں کس کی آ رہی ہوتی ہیں؟ آوازوں کو مجھے دیں کس کی آ رہی ہوتی ہیں؟ آ ای او. آ زبر کی ہوگی. ان کی عید. آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جی. مدار جب جی کی ہم آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. جی جی یہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا الف ہوتا الف ہے یہ. ٹھیک ہے. اب جی یہ میں اور ڈیپ ڈاؤن جاؤں تو یہ تینوں ہی الف ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اور آپ کو بتاؤں نا یہ سارے الف ہی ہیں. الف کی مختلف حالتیں ہیں یہ ساری. ٹھیک ہے. اب اور کنفیوز ہو گیا آپ. جی جیسے آ ای او. ہاں جی. پہلے الف ہاں جی. الف جب ہاں جی اپنی سائن زیر والی لے گا تو وہ یا کی شکل اختیار کر لے گا. ٹھیک ہے. اگر الف پیش اس کے پہلے آ گئی پیش والی اس نے شکل لے گا تو وہ واو. واؤ کی شکل واو اختیار لے گا. کر ہاں لے گا. جی. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر اسی لیے تو جب کبرا لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ بتا دیں، مجھے ذہن میں آ گئی بات. کبرا لکھتے ہیں تو کیا آتا ہے ذہن جی میں؟ جی با پہ جو ہے نا الف آ جاتا ہے چھوٹا سا نا الف آ کبرا. ہاں جاتا ہے. تو جی. وہ جو چھوٹا الف ہے کبھی ہم نے سوچا کہ کیا چیز ہے؟ جے ہے. یہ ٹھیک جی ہے. یہ الف جی صغیرہ الف چھوٹا ہے تو یعنی کہ الف. یا جو ہے الف نے اپنی کرسی لے لی، یا سے شین لی ہے کہ یہ میں آپ ہوں خود، کیونکہ وہ بدلے گا نہیں نا. کبرا سگرا میں مبنی ہے نا. جی تو وہ یا آنی تھی، یا آئی ہے، لیکن الف نے آ کے کہا کہ نہیں یہ میری کرسی ہے، میں بیٹھ گیا یا کے اوپر بیٹھ گیا. آ کے نہیں، میں نے نہیں دینی یہ. ٹھیک ہے. تو یہ کھڑی زبر جو ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی خبر کیا دے رہی ہوتی ہے؟ کھڑی زبر. یہ کھڑی زبر ہے. اور اس کی خبر کون سی دے رہی ہوتی ہے؟ کھڑی زیر. ٹھیک ہے. اور اس کی خبر کون دے رہا ہوتا ہے؟ ہمارا الٹا پیش. پے واو قرآن پیش الٹا پیش عربی ہوا. قرآن میں الٹا پیش نہیں ہوتا. جی مطلب وہاں پہ نظر کم آتا ہے. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو بھی جب پڑھیں گے قرآن کو، کم نظر آتا جی ہے. یہ الٹا پیش کی جگہ یہ لوگ زیرو لگاتے ہیں نا بہت. اب مطلب کہ بھی اس کو جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو ادھر دیکھیں گے انشاءاللہ. میں بلکہ آپ کو عربی قرآن ہی دوں. جب آپ جائیں گے نا سعودی عرب میں انشاءاللہ، جاؤ کسی عربی ممالک میں، تو آرام سے جا کے پڑھ سکتے ہیں. جہاں کہیں سے بھی ملے آرام سے قرآن اٹھایا اور پڑھ لیا. کیونکہ ہم پاکستان والوں نے ایسا اپنے آپ کو یوز ٹو کر لیا ہے کہ ہم دوسرے قرآنوں کو پھر کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا اس کو پڑھنا کیا. کیونکہ وہاں پہ پھر یہ سارے تجوید کے اصول کا پھر پتا ہونا چاہیے عربی قرآن پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. جو عثمانی مصحف ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پھر ہونا چاہیے آئیڈیا. تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے، سوری واو لکھا ہوتا ہے اس کے آگے ایسے. ٹھیک ہے. یہ واو چھوٹی سی آئی ہوتی ہے
और उसके नीचे जो भी हो या ऊपर हो, तो इसके लिए जे आई होती है वहां पे, और ऊपर जबर भी डाला जा, जो भी जेर भी होता है, कई दफा मद भी डाला होते हैं। जे किधर है? ये जो मजरेहा में ग्रीन, नहीं माजरेहा का, हाँ हाँ मैं तो माजरेहा बता रही थी, आई एम सॉरी, जी, आप क्योंकि तो मैं मीन खड़ी, वीन लेकिन वो बताकर। खड़ी जेर को इन इन हरकत को मैं डीप डाउन आपको चली गई बहुत दूर जी तक, हाँ जी, कंफ्यूजन कर दी, ठीक है, लेकिन दो ही। आप थोड़ा पता तो चल गया ना कि इधर क्या होता है। जब आपको खड़ी जी जबर का, ये वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खड़ी जबर या खड़ी जेर का, हम खड़ी जेर का कर रहे हैं ना, माजरी का, री का, है ना, जी तो री की खड़ी जेर को जे मैंने खोला है इधर, ठीक है, क्या खोला है मैंने, क्या किया है, क्या बताया मैंने आप लोगों को? जी आपने ना छोटी हाँ छोटी के लिए बड़ा रे बनाया है ना। जे जी ऐसे नहीं नहीं वो और बात है, वो तो कुरान, जो अरबी कुरान है सिर्फ उन्हीं में लिखा होता है, उनमें आपको ये ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता, जी वो वो मैंने उनको देखा है उसमें ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो बहुत डिफरेंट लिखा होता है। जैसे डिफरेंट लिखा होता मदात है, है ना, ठीक है। तो वो मदात को शो भी किया जाता है। जैसे हमें तो बहुत आसान, मुझे काफी प्यारा अच्छा, भी लगा था वो। जी मैं एक दफा देखा है। मैं उनको, हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो, अच्छा माशाल्लाह। अल मिजान मदरसे में ना हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैं भी जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ इधर भी, लेकिन हमारी मस्जिद में वो पाकिस्तानी कहते हैं, हमने पाकिस्तानी मसहब से ही पढ़ाना है। अच्छा तो इस वजह से फिर ये है कि आप बच्चों को मैं लेकिन बताती होती हूँ उन अपने बच्चों को कि अरबी में से ये कहते हैं, ताकि उनको पता हो। तो इंशाल्लाह ताला ये फिर माजरी हा जो है, री जो है हमारा, री री अब इस शक्ल में आया अलिफ, ठीक है, ये अलिफ किस शक्ल में आया, इस शक्ल में। अब ये जेर की हरकत को ले, माजरी हा, हा जो है अब ये जेर वाली आ गई ना, माजरी का, ये जेर है ना एक किस्म की हमारी, ये जेर क्यों है, क्यों ये जेर है, ये देखें क्योंकि इसकी कुर्सी पर है, ये खड़ी जेर किधर है, इसको चले ये चला जाए, इसको मिटा दिया, तो आपको कहा क्या मिलेगी फिर इसकी जगह पे, जे, ठीक है, जे आपको मिल गई, क्योंकि वो हमने असली चीज उसकी गायब कर दी, समझ आ गई कि नहीं, असली जी चीज जी गायब हो गई, हाँ और जी जे आ गई। मैंने जिन जी बहनों को बताया हुआ है मद्दात का भी, उनको भी बताया था कि जे जो है इक्वल टू, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश मसावी हैं या बराबर हैं किसके, मद लेटर ए, के, जो नशीन बहन ने अभी बताया था, मद जी लेटर के जे बराबर हैं, ठीक है, इन्हीं की तरह होते हैं। अब तरह क्यों है, क्योंकि यही असल में होते हैं वो, ठीक है, असल में ये अलिफ सगीरा जो है, अलिफ छोटा जो अलिफ है, वो किसी भी कुर्सी पर बैठ बैठ जाता है। फिर हमने ये भी मैंने बताया हुआ है कहीं कि हम ये जो हैं ये आपस में बदलते रहते हैं, जी आपस में बदलते रहते हैं सारे, ठीक है, कभी कभी अलिफ इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी वो अपनी असली कुर्सी पर ही रहा, ठीक है, और कभी उसने ये शक्ल ले ली, ठीक है, ये शक्ल कभी ले ली, और कभी इनमें से कहीं भी ले ली। अगर इनमें से ली तो जेर ले ली, तो जे या जज्म आ गई, अगर पेश ली तो जे आ गई, क्योंकि उससे पहले होगी ना, इनसे पहले। तो फिर इंशाल्लाह ताला माजरी हा को लेते हैं, इसको मैं डिलीट करती हूँ। अगर जिस बहन को समझ आ गई हो, जिसका एडवांस हो थोड़ा सा लेवल, वो इसको समझ ले, जिसका नहीं हो वो भूल जाए इसको, ठीक है, वो अभी उसी पे रहे जहाँ पे है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन मेरे पास वो भी लोग हैं जो इसको एडवांस लेवल पे ले रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनको देना चाहा है, और जिनको नहीं समझ आई उनके लिए ये एक्स्ट्रा बूस्ट है, हजम करें इंशाल्लाह। कई दफा हम हैवी खाना खाते हैं ना, कब शादियों पे कितना खाते हैं जाके, जी
वो तो ये भी मैंने सुना कि पाकिस्तान में तो बैग में भी भर के ले आते हैं। यहाँ भी है बाजी, अच्छा, मैंने देखा। हाँ तो जी, पाकिस्तान से ही वो भी लोग आए हुए हैं। आदत तो फिल मौत है, हाँ जी, आदत फिल मौत, हाँ जी, ठीक है, आदतें नहीं मैंने बदलती। हाँ जी तो सुना इंशाल्लाह है कि उसमें वो नहीं अब मैं ऐसे जाऊंगी, करती हैं। हाँ लेकिन ये जी, है कि मैं हाँ जी, वैसे बता रही हूँ कि ऐसे भी जी, होता है। तो अमाला का लघवी मायना क्या है? झुकाना और मायल माइल करना। करना, माइल करना। हाँ जी, इस्तिलाह में अलिफ को या की तरफ मायल करना मोड़ना। हाँ जी, और जबर को जेर की तरफ मायल कर देना, ठीक है। करना। अलिफ को या की तरफ मायल कर देना और जबर को जेर की तरफ। अब हम इसको समझते हैं। माजरीहा में जेर है, ठीक है। हा जबर को किसकी तरफ मायल किया है हमने? ओह, बहुत लंबा लग गया। किसकी तरफ मायल किया है जबर को? ये की तरफ। जेर जेर की की। तरफ। जेर किधर है? जेर किधर है? नजर आ रहा है आपको सब कुछ? जेर किधर है? ये जेर है ना? ये अलिफ में है मैम। जी, 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 अलिफ रा में में है ना? छुपा हुआ है। रा में छुपा हुआ है, जेर नीचे है, ठीक है। अब मैंने इसको इसकी तरफ जबर को जेर की तरफ मायल कर दिया है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये इसका नहीं है, ठीक है। मज रे हा, इसका नहीं है। वैसे हम यानी कि अगर सॉरी अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका आगे वाली जबर का कोई तल्लुक नहीं है इससे। मुझे याद आ गया कि नहीं है इसका। मैं थोड़ी सी गड़बड़ करने लगी थी, जहन में कुछ और चल रहा था। इसका नहीं है, क्योंकि ये जो खड़ी जेर है, ठीक है, खड़ी जेर है और इसमें जो अलीफ था और या जज्म वाली थी, वो एक दूसरे की तरफ माइल हो रहे हैं, ठीक है। अलीफ और या एक दूसरे की तरफ माइल हो रहे हैं, ठीक है। माइल कर रहे हैं हम, अलीफ और या को एक दूसरे की तरफ माइल कर रहे हैं, ये जो है, ठीक है। अब जबर को जेर की तरफ हो गया ना, इस तरह, क्योंकि जहां इसमें खड़ी जेर में क्या है, ये अलीफ है, ठीक है, इसकी शक्ल में। तो अब जेर को जबर की तरफ, यानी कि थोड़ा सा अलीफ पढ़ना, इसको कहते हैं आधा अलीफ आधा आधी जेर, या। आधा या। आधी अलीफ आधी या, 50% अलीफ 50% या पढ़नी। तो इन दोनों को आधा आधा पढ़ना है, ठीक है। ये अलीफ को हम या की तरफ मायल इसमें करते हैं, अमाला करते हैं। ये वल्लाहु आलम अब क्यों होता है इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना तो हमारे पास इल्म नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो जवाब देती हूँ इस बात से, ठीक है। मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं इसको अब कहाँ चला गया, ठीक है। इंशाल्लाह जो जिस बहन की आवाज आ रही है वो अपना म्यूट कर लें प्लीज। 50% अलीफ 50% या, अलीफ और या, ठीक है। आधी आधी, आधा आधा पढ़ते हैं। तो आप क्या कहेंगे, हमारी आधी आधी क्या चीज है? या हमारी की उर्दू की आधी आधी जगह क्या है? बड़ी या। बड़ी या, बड़ी या। बड़ी या हाँ जी, हमारी उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह डाली हुई है ऑलरेडी। जी, बड़ी या की तरह हम पढ़ते हैं, कतरे की तरह, ठीक है। बड़ी या कतरे की तरह पढ़ते हैं हम, बीमारी की तरह इसको नहीं पढ़ते, बल्कि कतरे की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमारा उर्दू वाला कतरे है ना, किसको मज रे हा पढ़ते हैं, मज मज रे कतरा हो गया ना। अब सब बहनें सो गई, सब मेरा ख्याल और कंफ्यूज कर दिया। सिस्टर ऐस- ये नहीं, बस एक ही वर्ड है ना कुरान में पूरा? एक ही है, हाँ जी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ इसको तो रट्टा भी लगाना पड़े तो लगा लें, जी। ठीक है। लगाना पड़ेगा, बल्कि लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा कारी मैंने नहीं सुना जो कि इस पे आके मजरीहा कहेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे? मजरे है। मजरीहा मजरे पढ़ेंगे, हाँ। ठीक है।
पढ़ा जाएगा जब पढ़ेगा जो भी पढ़ने वाला है, ठीक है। कतरे की तरह पढ़ेगा, बीमारी की तरह नहीं, लिखे साथ में। यानी किसकी मैं बात कर रही हूँ? जेर को, जी जेर को कतरे की तरह पढ़ना है, ठीक है। ये रा जो है इसको, ठीक है। इंशाल्लाह अब मैं बीमारी की तरह पता चल गया आपको किस चीज की मैं बात कर रही हूँ, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, बीमारी की तरह नहीं। ये मैं उर्दू के अल्फाज दे के आपको बता रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि समझ आ जी जाएगी, ठीक है। बीमारी की तरह क्या होगा? री, बीमारी, जी कतरे, जी तो याद रहेगा ना। हाँ जी, बीमारी, री जुबान को नीचे ले जाना पड़ेगा ना, री री रे ले जाना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं? करेंगे। नहीं हाँ जी, सिस्टर, जैसे नहीं उर्दू में छोटी ये और बड़ी ये को पढ़ते हैं उस तरीके से इसको जैसे, हाँ बड़ी ये जी, की तरफ पढ़ा बड़ी या जाएगा। जुबान को ऊपर जाती है ना। जुबान को ऊपर या नहीं जाती, वो जरा या सी ऐसी होती है, आधी या है आधा अलिफ। बड़ी या जी हमारी उर्दू की ना, मैंने इस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ इसको आधा आधा करके, कि हमारी बड़ी या जो है वो बिल्कुल इस पे फिट बैठती है। तो शायद जी इसीलिए आई हुई है जी हमारे, क्योंकि हमारी जुबान तो नई जुबान है ना, जी तो इसलिए शायद ये इसमें आई है। अब हमारी भी उर्दू जिसने की थी अखज, वो बताए तो हमें पता चल जाए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कुछ, है ना। जी हमें ऐसे ही मिल गया है, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि इसके डीप डाउन। एक अरबी ही इतनी डीप डाउन लैंग्वेज है जिसमें इतना छोटा छोटा। अब क्योंकि हमारे लोगों ने फिर उसमें सर्च भी की है ना, फिर कुरान है ना, तो जी उसमें सर्च भी की हुई है फिर। तो ये इसको अब कैसे मैं इसको डिस्टिंग्विश करूं, इसको अलग अलग जे, ताकि बहनों को मिक्स मैच ना हो जाए। ये है, ठीक है। ये जो जितना इसके अंदर है ना एरिया मैप के, जी इसके रा के, ये सारा इसका है, ठीक है। रा के माजरे हा की रा का है इंशाल्लाह ताला। अब अगर किसी को समझ ना ये आई तो इससे पहले कि मैं 7वें नंबर पे जाऊं, मुझे बताए प्लीज। माजरे हा का तो आज के बाद नहीं गलत पढ़ेंगे ना। जी इसके साथ जाके लिख ले कतरे, कतरे डाल के टिक कर ले, और कुछ नहीं भी लिखना ना, कतरे डाल के टिक कर ले। यानी कि मैंने करना है, टिक कैसे लिख के करेंगे? स्पून फीड कर देती हूँ जहां पे मैं, टिक कर दें और बीमारी डाल के क्रॉस कर दें, ठीक है। यानी के जेर को किधर पढ़ना? जेर को मजहूल आप कहेंगे, जेर को मजहूल पढ़ना है जहां पे, कि जेर को हला जी के हमने अलिफ की तरफ माइल कर दिया ना, जी सॉरी जबर की तरफ माइल कर दिया ना, हाँ अलिफ को जी, या की तरफ मत कर दिया, तो फिर हम क्या हाँ जी, करेंगे? इस मजरेहा जहां पे भी ये लफ्ज आता है ना, तो आप लोगों ने वहां पे जाके अपना नोट पूरा, जहां पे जितना भी आप लिखना चाहते हैं जिससे आपको समझ आ जाए, क्योंकि आप हर रोज वो कुरान पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है। और अगर किसी को बताना हो तो उसको इतना बता दिया जाए जो कि आम बंदा है। अब जो वो मेरी बहनें जिनको समझ थोड़ी थोड़ी आई है, वो ये सुन ले कि बस बाकी सब कुछ छोड़ दें, इसकी एक्सप्लेनेशन छोड़ दें। जिनको समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको नहीं समझ आई वो इतना ले ले कि इसको ये मज रे, रे जो है रे को कतरे की तरह पढ़ना है, ठीक है। कतरे मजहूल पढ़ना है जहां पे, बाकी जेर मजहूल नहीं पढ़ी जाती। जेर वाल जहाँ पे कुरान कायदा होता है कुरान का, वहां पे भी लिखा होता है कि जेर वाले हरूफ को मजहूल नहीं पढ़ना। नशीन बहन बताएंगे जी आप, कभी जी जी, आपने देखा कायदे है? में भी यही होता। और आपने ये बहुत प्यारा बोला है कि इसको मजहूल पढ़ना है, बिकॉज जो हमने पुराने दौर में कुरान पढ़ा है ना, मैंने भी, तो उसमें ये जैसे बाजर बे ताजर थे इसी तरह होता था, तो बस ये वो मजहूल कॉन्सेप्ट। नहीं पढ़ने ना फिर, जी ना? बाकी मजहूल नहीं, नहीं जैसे पढ़ने। मजहूल, हाँ
इसको बस सिर्फ ओनली वन वर्ड मजहूल पढ़ना है जी। वन वर्ड मजहूल पढ़ना है। अगर आप इतना भी ले लें या इतना भी लिख दें, लेकिन आपको मजहूल की समझ आनी होनी चाहिए फिर, बिल्कुल। क्योंकि मजहूल जहल से है। मजरे। यानी हलाते हैं और ये उसको, हला के कैसे करते हैं वो, जेर को आदि जबर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जबर की तरफ मायल करके पढ़ रहे होते हैं, तो वो तो एक ही लफ्ज में पढ़ा जाएगा जी। और इसको कायदे जी में भी मेंशन किया हुआ होता है, जो आपने माशाल्लाह आज बहुत प्यारे डिटेल से समझाया है और मुझे आज समझ आया। वरना तो कायदे में बस यही लिखा होता है ना कि बस मजहूल इसको नहीं मजरे, पढ़ना। हाँ, उसको इस तरह उसको पढ़े। मजहूल नहीं पढ़ना, और माजरे हा को माजरे हा पढ़ना है, कतरे की तरह, बस इतना लिखा होता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये डीप डाउन आप लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन जब मैं आप लोगों को बताती हूँ ना खोल के कोई वर्ड, तो मुझे बहुत समझ आ जाती है उसकी, ठीक है। आज मैंने इसको अच्छी तरह खोला है, इससे पहले मैंने अच्छी तरह कभी खोल के ऐसे लिखा नहीं था, तो जब आज मैंने खोला है ना तो मुझे और समझ आई है, जी ठीक है। आप लोगों के साथ मैं भी पढ़ रही हूँ। जी माशाल्लाह। इसको मैंने खोला नहीं है कभी पहले, ये अलहदा अलहदा जैसे खोलने का मतलब क्या है कि ये तो मुझे पता है कि ये सब हुआ हुआ है, लेकिन सब इकट्ठा करके माजरे हा की डेफिनेशन में मैंने नहीं खोला हुआ, ठीक है। सब अलहदा अलहदा तो किया हुआ है, लेकिन इसको इकट्ठा जब माजरे हक, अब आपको आज किस 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 चीज की समझ आई है, इसी से है, सिर्फ एक लफ्ज के खोलने से। एक तो आपको जेर का मजहूल कब पड़ी जाएगी और मारूफ कब पड़ी जाएगी, पता चला कि नहीं? जी जी पता चला। दूसरी नंबर 2 चीज, जो हमारी खड़ी जबर होती है, खड़ी जेर होती है, उल्टा पेश होती है, असल में उसके अंदर क्या छुपा हुआ होता अलिफ सगीरा। है ना? तो हाँ अलिफ सगीरा तो अरबी का लफ्ज है ना, छोटा अलिफ। जी जी लेकिन लेकिन ये है कि ये इसमें इसके अंदर अलिफ सगीरा जो है किस किस शक्ल में आता है, जी ठीक है। अलिफ सगीरा किस किस शक्ल में आता है, कभी वो अपनी असली शक्ल में आ रहा होता है, अलिफ जो है, ये अलिफ अपनी असली शक्ल दिखा रहा है, ठीक है, जहां पे, जी और कभी वो नहीं दिखाता। तो ये अब मैं 7वां कर दूं, ये तो अब सारा दिन हम चले जाएंगे इसमें, जी लंबा सिस्टर, चौड़ा 8 बज जी गए हैं जी। हाँ, 8 बज गए, वही ना कि आप लोगों के 8 बज गए, लेकिन कोई बेचारी बहनों का टाइम जो है एक हो उसका, गया उनका। लेकिन जी ये है कि अब हमारा फिर भी एक जो कभी जबर, कभी राह मोटी पड़ी जाती है, कभी बरीक पड़ी जाती है, वो तो अभी मैंने किया नहीं, उसका भी मैंने आज मेरा इरादा था कि मैं राह खत्म कराऊंगी, लेकिन आज मैंने माजरे हा को खोल दिया, जी तो दरवाजा और खोल दिया। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला को पता है कि हिकमत क्या है इसके पीछे, उसे पता है ना, हमें नहीं पता। नंबर 7 राह लिखे हैं, जहाँ पे जगह बनाऊं पहले मैं लिखने के लिए, तो ये मकसूरा राह, राह मकसूरा, मकसूरा किसको कहते हैं? जेर वाली राह, ठीक है। राह जेर वाली, जब इसके इसके ऊपर वक्फ किया जाएगा, लेकिन मैंने अभी आपको बताया नहीं हुआ, इसको नोट को लिख ले, इसको लिख ले, लेकिन अभी मैंने उसको बताया नहीं, वक्फ के असूल करेंगे तो फिर बताऊंगी, ठीक है। अभी इतना आप लिख लें कि जिस राह पर वक्फ किया जाए, यानी कि कौन सी राह? सुकून या वक्फ किया जाए। वक्फ किया जाए, ये कोई भी राह हो सकती है, जबर वाली भी हो सकती है, ठीक है। जेर वाली हाँ जी तो क्योंकि अगर जेर वाली जी है, यानी कि इससे पहले भी जज्म वाला हर्फ हो, जेर वाली फॉर एग्जांपल लें रा, उससे पहले जज्म वाला हर्फ हो, और उससे पहले जेर से हो, हर्फ जो है कहाँ हो? जेर से, रा से पहले जेर से हर्फ हो, तो रा बरीक होगी, ठीक है। रा क्या होगी? बरीक बारीक होगी। होगी हिजर, हिजर मैंने किया हुआ है, मेरा ख्याल मैंने बता दिया आपको। अच्छा, रा मकसूरा हो, यानी जज्म वाली हो, जेर वाली हो, इस पर, सॉरी मैं
रोम के साथ, अब मुझे रा के ऊपर रोम के साथ वक्फ हो, ठीक है, लिख लें। रा पर मकसूरा, रा यानी जेर वाली रा हो के ऊपर वक्फ कैसे किया जाए? रोम के साथ, रोम किया जाए, इसको रोम से पढ़ा जाए। नौशीन बहन, आप बता सकते हैं अगर आपको रोम का पता है तो? नहीं नहीं, मैंने आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ रोम। अच्छा, रोम होता है और इश्माम होता है। रोम और इश्माम जो है ये इंशाल्लाह अभी हम करेंगे जब भी जिंदगी रही। रा के ऊपर रोम से वक्फ किया जाए, ठीक है, रोम के साथ। सिस्टर, आप रोम और इशमाम कल पढ़ाएंगी फिर नो 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 इंशाल्लाह? नो नो, ये मैं अच्छा वक्फ में पढ़ाऊंगी, वक्फ का लंबा टॉपिक है। जी अभी तो मैंने इसको पैकअप करना है रमजान के लिए ना। जी जी। रोम के साथ वक्फ किया जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल वक्फ कर लेंगे ना। ये तो उनको है जो कि आप नहीं लेना चाहते हैं, क्या है इजाजा वगैरह, ठीक है। और वैसे भी पढ़ाने वालों को इजाजा लेनी चाहिए, ठीक है, आगे देने वालों को किया जाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मुझसे ना सुना गया था जब मैं अपने सेंटर में पढ़ाने लगी थी, तो मुझसे सुना था किसी ने, बहन ने, किसी ने, तो वो माशाल्लाह वो कुरान में से फिर किसी जगह पे जहाँ पे भी खास खास असूल होते हैं ना, वहां से आपको पढ़ने के लिए फिर कहते हैं कि वहां वहां पे से पढ़ा जाए। तो जिस तरह भी फिर आप जनी के वक्फ के लिए वो कह रहे हैं, तो तब जिस तरह भी कहे तो वो फिर आपको पढ़ना पड़ता है, तो पता चलता है कि आप गलत पढ़ रहे हैं कि ठीक पढ़ रहे हैं। ये वल फज्र की तो मिसाल नहीं ठीक बैठ रही है इसके ऊपर। वल फज्री, हाँ, वल फज्री जब होगा जज्म के साथ नहीं होगा, फिर इसको अभी सिर्फ इतना लिख लें, ठीक है। वल फज्री लिख दें, जहाँ पे वहां पे हमने वल फज्र कहा किया था, ठीक है। अब हम वल फज्री लिख लें, वल असरी लिख लें, बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन इसको छोड़ दें बस जहाँ पे ही, ठीक है। इतना लिख दें कि ये रा क्या होगी? बारीक होगी, ठीक है। रा क्या होगी? बारीक होगी। ठीक है। जे वल फजरी वल असर में लिखने लगी थी और जगह बहुत थोड़ी है। जे किसी कारी को सुनेंगे ना तो शायद आपको पता चल जाए, खासकर जो कारी घर का महरम मर्द हो ना, जब औरत भी हो, औरत को तो महरम की नहीं है, आप औरतें ही हैं, तो अगर घर का किसी ने किया हो ना हिफ्स वगैरह, तो उसको सुने, अगर उसने भी इसके साथ किया होगा तो पता करके, तो ये वाला असर है। लेकिन वो लिखने में जरा सा बहुत गड़बड़ हो गई है, जगह नहीं है। ये वक्फ कर रहे हैं हम, ठीक है, वक्फ की हालतें हैं इंशाल्लाह ताला। तो पढ़ने वाला जब पढ़ता है बहुत उसको सामने बैठा हो तो फिर पता चलता है, वरना नहीं पता चलता। यानी रा जो है हफ्स जो है ना, हफ्स का तरीका जो रा है ना मजरे हा वाली, उसमें भी ये रा जो है रोम के साथ वाली, अब हम इसको रोम को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दे। मजरे हा वाली जो रा है ना, उसमें जो हफ्स है, मैंने बताया था ना, हफ्स मिन आसम तरीका शातबिया से, तो वो जो है वो बताते हैं कि सिर्फ इसी कलिमे में अमाला होता है और उसका तलफ़्फ़ुज़ इसी तरह होगा जिस तरह उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ कतरे और हमारे का होता है, इतना इस किताब में आता है, ठीक है। जो आसम जो है ना तरीका शातबिया,
اس میں ہے جی، اس بک کا نام ہے، اگر کسی نے لینی ہو تو کوئی میرا خیال ہے 2-3 ہزار پاؤنڈ روپے کی آتی ہے، مطلب یہ 3 بکس ہیں بک کا اس کی۔ نام باجی، بک کا نام بتا دیں۔ بک کا نام احکام التجوید القرآن ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، 2-3 جو دفعہ بتا بھی چکی ہوں۔ جو 3 بکیں ہیں باجی، 3 آپ کے پاس ہے وہ، ہے ہاں نا، آپ جی نے میرے منگوائی پاس تھی، ہے، ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ جو میں بتا رہی ہوں اس بک سے سارا نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے، اچھا آپ کو اچھا سارا نہیں ملے گا، بہت کافی ڈیٹیل ہے اس میں، اچھا لیکن وہ اردو ترجمہ کیا گیا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اچھا، انگلش ترجمہ بھی اس کا کیا گیا ہے کہاں، حفص بن عاصم کو سن لے۔ اچھا میں ہاں جو جی جس کا میں بتاتی ہوتی ہوں نا آپ کو، جی والفجر، فجر، سورہ عصر جو ہے حفص بن عاصم جو ہے نا، کیا ہے ان کا نام لیتی ہوں، شیخ ایمن سوید رشدی جو ہیں، ہاں جی انہوں نے یہ بک لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ان کا طریقہ جو ہے اس کو سن لیں، ٹھیک ہے، اس جی، کو سنتے رہے، نمبر 1 بک میں ہے یا قرآن ان کا طریقے سے سنیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ کیے ہوں گے، روم اور اشمام، اوکے، اچھا پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ بات ہے، کیونکہ آپ جب سمجھ جائیں گے ان کو تو پھر پتا چلے گا ان کے سننے سے بھی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی، لیکن آج ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے، جہاں پہ ہی رکتے ہیں، بہت لمبا ہو گیا کام انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم نے ترقی کی راہ پڑھی ہے، اس میں 7 اصول ہم نے پڑھے ہیں، اور اصول نمبر 3 جو تھا اس میں ہم نے 3 ایکسٹرا اس کے اصول پڑھے ہیں اس کے، اور امالہ کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ امالہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے روم نہیں کیا، ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ تعالی میں روم نہیں کرتی ہوتی، یعنی کہ دوسرا ہی وقف کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا اللہم سسٹر صلی شمیم علی آپ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ وعلیکم تعالی۔ السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ مجھے وبرکاتہ۔ بند کرنے وبرکاتہ۔ تھے پھر آپ، وعلیکم ہاں جی، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بہن پوچھ رہی ہیں جب تک میں بند نہیں کرتی؟ سسٹر شمیم مجھے جی، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا، ریکارڈنگ اچھا بند کر دیں جی۔ ریکارڈنگ بند کر دوں؟ میں ابھی بند کرنے لگی ہوں، پہلے